Hello, now it is okay? Yes, sir. Yes, It sir. is okay. Yes. Fine. Let's continue with the beginning session of Yes, sir. marketing management. Are, Today we will come to know about basic fundamentals of marketing management. are you able to visit screen? Yes, sir. Fine. I am revising what we studied yesterday in last session too, because many of the students were not being able to get connected in that session due to technical glitch. So better to continuing further. In between, if you have any at the end. Marketing, we have discussed about concept and definition of marketing. That American Marketing Association defines marketing as it is an organizational function and a set of processes for creating, communicating, and delivering the value to the customers and for managing customer relationship in the ways that the benefit of organization and its stakeholder. That means हमको एक ऐसा प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है, एक ऐसे प्रोसेस से डेवलप करना है अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को कस्टमर को डिलीवर करना है, जहां से वी कैन एनहांस द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. कस्टमर के साथ एक बढ़िया रिलेशनशिप तभी होगा जब कस्टमर बेनिफिट फील करेंगे. एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन भी तभी सस्टेन करेगा जब ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा. एंड अगेन स्टेक होल्डर्स नीड टू बी बेनिफिटेड. दैट मीन्स फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं कंपनी में जिनका द पर्सन आइदर who get affected by the company or get to affect the company. दोनों तरफ से, चाहे वो कंपनी के टॉप डायरेक्टर्स हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो, या वर्कर्स हो, सप्लायर हो, इंटरमीडियरीज हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेनी थिंग्स. They all are the stakeholders. Even government is also one of the stake. Public at large, customers, they all are the stakeholders. फिप कॉटलर एक रिनाउंड मार्केटिंग गुरु के रूप में लोग इन्हें जानते हैं, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इनका मार्केटिंग के फील्ड में. इन्होंने डिफाइन किया है दैट इट इज अ सोसाइटल प्रोसेस by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and services value with others. They have to maintain a societal process so that the society need to get benefited. Freely exchanging products, offering, creating entire the services so that value added system customer need to get proper value what they are taking. They should be feel that if they are getting products they are value getting instead of only getting product. Ultimately, marketing is the process of creating, distributing, promoting, and pricing goods, services, and ideas to facilitate exchange. डिफरेंट थॉट्स के साथ कई सारा आपने डेफिनेशंस का समराइजिंग किया है. इट इज ए सोसाइटल प्रोसेस, नीड्स वन प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, delivering with this customer satisfaction, facilitates customer exchange relationships, making takes place, dynamic environment. Dynamic means changing environment, time to time, situation to situation, as per as requirement. We can change our environment, internal as well as external, to cope up with the external problems or internal problems so that organization will continue comfortably. It is a profit and non-profit organizations both. Process of anticipation, identification and satisfaction of the customers, profitability. Exchange process में हमने देखा था, it is a two party must be there, both should have something interest of each other, proper communication between them, both parties are free to accept or reject the deal, so that the communication के बाद if they understand that they should go with their ideas, they will continue with that. And
a virtual marketplace if we are dealing with the virtual, or physical marketplace if we are dealing with the physical. That means marketplace is one of the essential characteristics required. Now we discussed about need, want, and demand. There are most of the things we think. What is our need? Not necessarily it is of your need. What is your need? Not necessarily need of the others. So need and want largely vary person to person, profession to profession, situation to situation. Needs are those basic necessities without fulfilling that a customer cannot survive, and wants are the luxurious, increasing comfortness to sustaining the life, to enjoying the products. There are certain marketing products too. Components, ongoing review, need to be proper review what we are making strategies, business augmentations, conducting proper marketing research so that marketers can come to know about what they need to be manufactured, to whom they need to be manufactured, what would be the size of the market, what would be the size of customer, which type of economic drivers, industry drivers, which may increase our strength and decrease the competitors' abilities, so that we have to know about our short analysis, strength, weakness, opportunities, and threats. Am I audible? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, बीच बीच में आप लोग बीच बीच में फीडबैक देते रहेंगे, पता नहीं कब डिस्कनेक्ट हो जाए, पता नहीं चलता. Yes, sir. Okay, sir. Next, we have discussed about evolution of marketing concept. In that, we have seen that industrial revolution taken place in 1880 at England. After that, global industrialization has been increased rapidly, but India was under the British rule, so the entire benefit of this was taken by the British government. The first era was the production era. In that era, marketer focused much more towards production abilities to produce more and more. Later on, it converted into product era. In this era, marketer started focusing about product specifications, making product quality better and more better. Still, the product was not able to perform the best in the market. Then they have introduced selling era. In this era, salesmanship, effort of salesman has been increased, a team has been assigned, and they are focusing towards increase more and more sale. Then marketing era, the concept begins from the need of the customer and ends with the satisfaction of the customer. Later on, it increased into societal marketing era, in which not only selling the product, making relationship, awareing them, and taking the responsibilities of corporate social responsibilities. By this mechanism, participating in social activities, amenities, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल्स, कुछ स्कूल्स में डोनेशन दे दिए, कुछ स्कूल्स को और डेवलप करा दिए, कहीं रोड बनवा दिए, कहीं ब्रिज में कंट्रीब्यूशन कर दिए, सो दैट कि जहां पे हमारी इंडस्ट्री चल रही है, कस्टमर्स आर फीलिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अबाउट दैट कंपनी. देखो ये इंफोसिस है, इंफोसिस कंपनी ने हैदराबाद, बैंगलोर, ग्रेटर नोएडा, इन ऐसे बड़े शहर को इतना बढ़िया तरह से डेवलप कर दिया कि गवर्नमेंट भी वो प्लान नहीं कर पा रही थी. और उन्होंने डेवलप किया गवर्नमेंट के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए. उनके एम्प्लॉय को कन्वीनियंट हो, उनके कस्टमर को कन्वीनियंट हो, उनके बिजनेस प्रोसेस में कन्वीनियंस है. दैट मीन्स सोसाइटल मार्केटिंग इरा. ये कॉन्सेप्ट माइंड में आया कि कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के काम नहीं कर रही है, कंपनी उस एरिया के सोशल प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर रही है, और जहां भी जरूरत होता है दे इंटर एंड दे यूज टू फुलफिल satisfying us with the societal problem, whatever generating in that particular area. Then next, in the current scenario, that is the customized marketing era. In this era, we are very aggressively interacting with our customer. Even companies have increased their product lines because they know that many customers are having different choices and they are comfortable enough
to manufacture the products accordingly their choices. They know that what they want to manufacture that will be come from customer expectation and in with the customer satisfaction. Even if customer changes their preferences, the company need to also change their preferences, their attributes, their feature, their priorities to make our product most competent in the mind of the customers and attaining the value of the customer so that our product will be always satisfying product. Next, we have seen the product concept. There are different types of product. Generic product is there, which generally used to sell by their own name. है ना? There are, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट. आप में से किसी के पास कोई आइडिया है प्रोडक्ट के बारे में? व्हाट इज प्रोडक्ट? Can you write something in chat box about product? Some product means focus on quality and performance product. Focuses in Focus on quality and performance product. Rajesh has mentioned it can exchange in terms of money. Good. Satisfy, exactly. Pinto is almost very close. Anything will satisfy the need of the buyer. Product is what company produces as their final product. Rishikesh has mentioned. See, product is a bundle of benefits which satisfy consumer requirements. Suppose I am using this marker. Got it? This is a product. As a teacher, I need it to deal with the class. As a student, you need to practice at your home or practice in the class. Kajal has mentioned product is something which is available for the consumer use, right? But हम ना आज के जो customers हैं ना, they are highly selfish and it should be nothing bad. हम क्या करेंगे इस मार्कर का if we are not able to write it in the whiteboard? So product is a bundle of benefit which satisfy consumer requirements. Not only product. We are not purchasing just a product for the sake of purchasing. Yes, I have paid to you. You have paid the value of the money product and this product is yours. No, it need to be satisfied you about with their values. If you are satisfied with the benefit, if you are getting the benefits of the product, that means this product will satisfy you. This product will cater you better manner. So product is anything which having bundle of benefits who satisfied consumer requirements. Now, हम जहां भी हैं हमारे आसपास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. There are many products around us. I am asking a very simple question with you. Any intangible product can you first you know what is tangible or intangible? Yes or no, please? Fast. Yes, sir. You know that Prince said no. Fine. Let me clear what is tangible and intangible. Tangible means a product which can be seen, which can be touched, or which can be displayed, जिसको हम देख सके, टच कर सके और एक जगह से उठा के दूसरे जगह रख सके. Books, diary, copy, laptop, mobile. These all are the tangible products. And intangible products are those which we cannot see, which we cannot touch, which we cannot display. We just feel it. हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं. आप अभी जहां भी हो, अपने कमरे में हो, अपने रूम में हो, बालकनी में हो, छत पे हो, क्लासरूम में हो, as I am inside the classroom. There are intangible products too, like oxygen. We are surviving due to oxygen.
and in this classroom or at your place where you are situated, either in your home. Oxygen is there. And what is oxygen? It is an intangible product. Got it? So tangible product means which we can see, touched and displayed. And intangible product means which we cannot see, which we cannot displace, which we cannot touch, only we can feel it. हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं yes, this is the product, and without that we cannot survive, like oxygen. So tangible and intangible, both product having their own benefits to satisfy us, to cater us, to increase our efficiency, to demonstrate the multiple types of benefits. Got it? Now we come to the slides. Generic product that provides attribute or proportion to address the core need. आज भी अब ऐसी एक परंपरा है since long year back, अर्बन एरियाज में थोड़ा कम, रूरल एरियाज में थोड़ा ज्यादा, बहुत सारे प्रोडक्ट अपने जेनेरिक नाम पे बिकते हैं. भैया 1 केजी सर्फ दे देना. कौन सी सर्फ, इससे मतलब नहीं. भैया 1 केजी नमक दे देना. भैया 1 केजी चाय पत्ती दे देना. Generic name that is called are depending on the values of durability, non-durability, service, and that will continue certain brand names, quality, styling, packaging, color, and perhaps the instructions manual. Nowadays it has been changing. अब हम उसी जेनेरिक टर्म्स को हम ब्रांडेड जेनेरिक टर्म में कन्वर्ट करते हैं. एक ब्रांड नेम दे देते हैं, वो बन गया सर्फ एक्सेल, वो सर्फ बन गया रिन, वो सर्फ बन गया एरियल, ये सर्फ डिफरेंट नाम से. वो चाय पत्ती बन गई टाटा, वो चाय पत्ती बन गई ताजा. तो डिफरेंट रेड लेबल, डिफरेंट नाम से उसको हम ब्रांडिंग कर दिए और उसकी पैकेजिंग कर दी है. अब एक तरफ वो जेनेरिक नेम से भी बिक रहे हैं और दूसरे तरफ ब्रांडेड नेम से भी बिक रहे हैं. द सेम प्रोडक्ट इज डिलीवरिंग विद द डिफरेंट स्टाइल. देन थर्ड लेवल इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. It is the boast of the sets of attribute of characteristics that buyer normally expect in a product and which pursued consumers to buy. हम एक्सपेक्टेंसी जनरेट करते हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, मार्केटिंग रिसर्च करने के माध्यम से, सो दैट कि कस्टमर्स के अंदर कुछ ऐसा एट्रीब्यूट डेवलप हो सके कि वो कुछ प्रोडक्ट को एक्सपेक्ट करे. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस टी लीफ इज वेरी गुड, बट देयर आर द प्रॉब्लम ऑफ हम बहुत ज्यादा टी लीफ भी डालते हैं फिर भी वो एक्सपेक्टेड कलर नहीं आता है. दैट मीन्स एक फीचर इस प्रोडक्ट का हमको दिखा मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू कि चाय पत्ती में हमको थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को ऐसे बढ़ाना होगा कि टेस्ट के साथ साथ कलर भी मायने रखे, क्योंकि हमारे यहाँ चाय पत्ती को लोग टी एक बेसिक नेसेसिटी के रूप में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं. राइट? आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. बहुत सारे लोग ना चाय पत्ती का कलर देख के उसका टेस्ट समझ में आ जाता है. अब बहुत सारी टीज में हम ऐसा देखते हैं कि कलर नहीं आती, टेस्ट बहुत बढ़िया है. तो द कस्टमर दोज हु मैटर्स कलर नीड टू बी मॉडिफाई द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर दोज हु मैटर टेस्ट. अब कलर चाहे बहुत बढ़िया भी दे दो, लेकिन अगर उस कलर में टेस्ट नहीं है, दैट डजंट अफेक्ट, दैट डजंट साउंड गुड, दैट डजंट साउंड कस्टमर सेटिस्फाइड. तो हमारे पास क्या ये एट्रीब्यूट्स हम सामने ले रहे हैं ना कि हमको कस्टमर का टेस्ट भी देखना है, फ्लेवर भी देखना है, कलर भी देखना है. दैट इज हमने रिसर्च के थ्रू उनके अंदर ये एट्रीब्यूट डेवलप कर दिया कि यस यू हैव टू बी कैटर्ड. एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर होना चाहिए. एंड द फोर्थ लेवल इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट दैट इज रेफर्स टू डिलीवरल एडिशनल्स ऑफ द फीचर, बेनिफिट, सर्विसेज, इंस्टॉलेशंस, कस्टमर एजुकेशन, कस्टमर ट्रेनिंग, आफ्टर सेल सर्विस, गारंटीज और वारंटीज, पेमेंट ऑप्शंस, कस्टमर कंप्लेंट रिडक्शन. बहुत मायने रखती है ये छोटी छोटी चीजें. मार्केटर्स deliberately instigate the design of the production and the products. देखो आज के दौर में क्या है ना कि प्रोडक्ट हमारे पास बहुत बढ़िया है और सर्विसेज बहुत पुअर है. शायद आप लोगों ने एक नाम सुना होगा,
हमारे इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक भूचाल लाने वाली एक कंपनी आई थी, देबू मोटर्स। मटीज कार सड़कों पे दौड़ते हुए उनकी आज भी हम देख पाते हैं। बट दैट कंपनी वाज बैंकरप्ट इन नेक्स्ट फ्यूचर। व्हाई इट इज सो? प्रोडक्ट वाज सो गुड दैट देबू मटीज वाज वेरी ल्यूक्रेटिव टू सी, बट their after sales services was not available in India. अगर प्रोडक्ट में कोई खराबी हो जाती थी, कोई कंपोनेंट पार्ट चेंज करना होता था, तो हमको फौरन से मंगाना पड़ता था। इट टेक्स टू टाइम, और हम आप क्या कस्टमर, एज ए कस्टमर वेट करना चाहते हैं? टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 5-10 मिनट क्लास में मुझे लेट हो जाता है, तो आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है कि पता नहीं सर आएंगे कि नहीं, आज क्लास होगी कि नहीं। हमारी जेन्युइन है ये क्यूरियोसिटी, इट इज नथिंग नेगेटिव। आई एम नॉट टेकिंग दैट नेगेटिव, इट इज अ जनरल क्यूरियोसिटी। तो आप 10 मिनट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो हमारे वो कस्टमर जो महीना इंतजार करेंगे कंपोनेंट पार्ट्स के लिए, डू वी थिंक दैट कस्टमर शुड वेट? नेवर, कस्टमर कैन नॉट वेट फॉर दैट। व्हाट वी नीड, हमको प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ आफ्टर सेल सर्विसेज, इमीडिएट इंस्टॉलेशन, क्वालिटेटिव डिलीवरी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, जहां पे इंस्टॉलेशन की, जैसे एयर कंडीशन आपने लिया, अपने रूम के लिए कोई फर्नीचर लिया, तो इन सब में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज होता है, तो उसका इंस्टॉलेशन के लिए आपको इंजीनियर्स होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर एजुकेशन, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, अगर कोई टेक्निकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसके रिगार्डिंग आपको टेक्निकल नो हाउ ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। आफ्टर सेल सर्विसेज, अगर कोई गारंटीज, वारंटी, प्रोडक्ट हैंडलिंग के रिगार्डिंग कैसे इसको यूज करें ताकि इसकी सर्विसेज हम और बेहतर बना सके, इन सब चीज के रिगार्डिंग। फिर भी अगर कस्टमर का कोई कंप्लेंट है, कितना प्रॉम्प्टली हम उनके कंप्लेंट को रिड्रेस करते हैं, उसको हम कितना जल्दी रिजॉल्व कर देते हैं, दैट मेक द कंपनीज मोर कॉन्फिडेंट। एंड इन सारे इश्यूज पे प्रोडक्शन क्वालिटी डेफिनेटली वी नीड टू इंक्रीज, प्रोडक्शन क्वालिटी वी हैव टू अपडेट। अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन क्वालिटी, these benefits also need to be taken seriously, and after sale services, pre-sale services and selling services, all the services integratedly need to be catered to our customer. The fifth level is the potential product. This refers to the possible augmentation of any changes that product can undergo. See, हमने अपने प्रोडक्ट में अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हमें चेंजेस करने थे, हमने चेंजेस किए और हमने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा। बट जब वो प्रोडक्ट मार्केट में गया, कस्टमर को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ और चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। एज पर एज मार्केटिंग रिसर्च इनपुट्स, एज पर एज कस्टमर इंटरैक्शंस, एज पर एज कस्टमर सजेशंस, customer involvement, we need to make those changes in our potential product to make our product more worthy, more trustworthy, more beneficial, more satisfying, which create a better prospect in the mind of the customers, so that customer always feel very happy to take that product. Customer feels that yes, this is the my product which I can utilize, get multiple benefits. क्योंकि आज क्या है ना, we try to access a product which having multiple types of benefits. हम एक प्रोडक्ट को सिर्फ एक बार यूज करने के लिए नहीं लेते हैं, सिर्फ सिंगल यूज के लिए नहीं लेते हैं। Nowadays we are expecting multiple tasking, we are expecting multiple usability of the products. So this benefits increases the benefits of abilities what we are using. A single product can serve the role of multiple product. Your mobile phone, पहले आप सिर्फ कॉलिंग के लिए फोन यूज करते थे, फिर धीरे धीरे उसमें डेटा स्टोरेज करने के लिए हम स्टोरेज के रूप में हम उसको यूज करने लगे। आज आप देख लो, आपकी पूरी दुनिया आपके मोबाइल में है। आप कहीं बाहर जाते हो, आप घर से खाना खाना भूल सकते हो, अपना बैग लेना भूल सकते हो, कॉपी, बुक्स, स्टेशनरी, अदर मटेरियल लेना भूल सकते हैं। क्या ऐसा होता है हम मोबाइल लेना भूल जाएं? यस और नो? Yes, sir. Yes, पता है? sir. No, sir. हम Yes, भूलते हैं sir. मोबाइल? Yes, sir.
हमें बैंकिंग करना है मोबाइल से करते हैं, हमें शॉपिंग करना है मोबाइल से करते हैं, हमें क्लासेस करना है मोबाइल से करते हैं। तो सिचुएशन Yes, sir. इज वेरी चेंज। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, आप क्लास में आते थे, वी रिस्ट्रिक्ट यू, मोबाइल फोन मस्ट बी स्विच्ड ऑफ। आज हम आपको बोल रहे हैं कनेक्ट विद योर मोबाइल फोन्स। This is the Yes, shift sir. of this is the Yes, shift sir. of technology, and this is the advantage of technology. What we both are utilizing and converting this pandemic situation into opportunity. अगर हम आज इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते तो हाथ पे हाथ धरे बैठे होते कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, बहुत क्राइसिस है भाई, बहुत कोरोना है, बाहर तो निकलना नहीं है, वी नीड नॉट टू गो आउटसाइड, घर में पढ़ाई हो नहीं सकती, तो करें तो क्या करें, या तो हम सेशन बैठ जाएंगे या यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट वाले अगर प्रमोट कर दे तो हम बिना मेहनत के बिना पढ़े पास हो जाएंगे। बट नो, if you are technically sound, if I am technically sound, if institutions is providing the services, we are interacting in front of you. This is the essence. अगर ये this is what potential change into product feature as an institutions where our services was to train you, right? But at the compulsion lockdown, it was not going to possible. Alternative mode has been generated. This is the essence of modifications. हमने अपने पॉसिबल ऑगमेंटेशन किया ना, इसके अंदर हमने बेनिफिट्स को बढ़ाया और धीरे धीरे आज आप में से बहुत सारे लोग पटना के बाहर बैठे हैं, बहुत सारे लोग बिहार के बाहर बैठे हैं, बट वी आर confronting each other, we are in fact interacting each other. Next, if we talk about the product classification, in that segment there are perishable and non-perishable products. The product which get easily damaged, lost their qualities, are known as perishable product. Bread, biscuit, butter, ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी क्वालिटी को हम बहुत लंबे समय तक प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द पेरिशेबल प्रोडक्ट। एंड नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, इनसे बने हुए कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट जो इनके कंपैरिजन में रिलेटिव एस्पेक्ट है, इनके कंपैरिजन में थोड़ा आगे चल जाए, कंपैरेटिवली ड्यूरेबिलिटी उनकी थोड़ी सी बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट विच कैन हैविंग लाइफ अप टू मैक्सिमम 1 year. होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, सेम टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, हम मॉल्स में जाते हैं, मार्ट में जाते हैं, देखते हैं ना एक रैक में शैम्पू रखा हुआ है तो हर कंपनी की शैम्पू ही रखी हुई है, कहीं बिस्किट रखा हुआ है तो हर कंपनी की बिस्किट ही रखी हुई है। दिस इज व्हाट होमोजेनियस। एक ही तरह के प्रोडक्ट को एक रैक में सजा दिया गया है, एक तरफ एक सेल्फ उसका बना दिया गया है, उसमें एक जैसा प्रोडक्ट होगा। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, जहां पे डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। पेरिशेबल से थोड़ा कंपैरेटिवली लाइफ इस पे ज्यादा होता है ड्यूरेबल में, एंड नॉन ड्यूरेबल जिसका की ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, इमीडिएट एक्सपायर कर जाता है इन कंपैरिजन टू ड्यूरेबल। दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। Tangible and intangible, we have discussed that tangible means which we can see, touched, displaced, and intangible which cannot seen, touched or displaced, only we can feel it. Next is the consumer and industrial product. This is one of the vital product classification. Consumer product means finished goods which is ready to deliver, which is ready to cater. That means हमने product purchase किया and we are ready to use. An industrial product which is not ready to use, which need a little bit modification, assembling, packaging, processing to make this as a finished product, to make this as a consumer product. बहुत सारा ऐसा भी प्रोडक्ट्स होता है जो एक कंपनी दूसरे कंपनी से खरीदती है, उसको प्रोसेस करती है, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रूप में फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो डिफरेंट थिंग्स आर देयर। कंज्यूमर प्रोडक्ट इज ऑलवेज रेडी टू यूज, फिनिश प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑलवेज नीड सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग टू मेक इट एज अ फिनिश प्रोडक्ट।
Look at the chat box. Please mark your attendance as अपना नाम, अपना कोर्स। यहीं से आपका अटेंडेंस उठ जाएगा। अगले 5 मिनट में आप लोग सब लोग अपना अपना नाम और अपना अपना कोर्स इंटर कर दे, यहीं से आपका अटेंडेंस बन जाएगा। बिकॉज दिस मीटिंग इज ऑलरेडी इन रिकॉर्डिंग। इसके पहले आप लोगों ने अगर किया होगा वो कंसीडर नहीं होगा, मेरे लिखने के बाद आप लोगों को करना है। ना हम लोग एक 2 मिनट का एक छोटा सा क्विज करके देखते हैं कि आप लोगों ने इस सेशन से कुछ समझा, कुछ बेनिफिट हुआ, या बस ऐसे ही हम लोगों ने कोरम पूरा किया। ओके, रेडी? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जिन पूछूंगा सिर्फ अपने आप को अनम्यूट करेंगे और आंसर करेंगे। कुशल कुमार, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट प्रोडक्ट? क्या समझा आपने प्रोडक्ट के बारे में? कुशल, कुशल, if don't know that, no issue, you tell this we have not understand, no issue, but if you understand you should say na something. Kushal, are you listening me? Srishti Prashad. Yes, sir. Yes. What do you understand about product? 1 minute. Sir, and art, sir, Just try, हिंदी में ही बोलो, कोई बात नहीं है। sir, sir, a product is the item offered for sale. Sir, फाइन, जो समझा वो बताओ, नहीं समझा कोई बात। sir, हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं सर। शालिनी रश्मि, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. आप मुझे ये बताइए कि टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट में क्या अंतर है? Tangible उसको कहते हैं जिसको मैं टच कर सकती हूँ या सीन कर सकती हूँ, और इंटेंजिबल को सिर्फ फील कर सकती हूँ। करेक्ट। युवराज इज देयर? Yes, sir. आप मुझे ये बताइए पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल प्रोडक्ट क्या है? बता पाएंगे? Came back from a search. No, sir. कोई बात नहीं। आशीष रंजन गुप्ता, आशीष रंजन गुप्ता, आप बता पाएंगे पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल? फाइन। सुफी परवीन,
Yes, sir. पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल? मुश्किल है। ओके, दिव्या प्रकाश, दिव्या प्रकाश, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. पेरिसेबल एंड नॉन पेरिसेबल? Sir, perishable products, वो प्रोडक्ट जो फ्रेश फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह. Perishables are those products which having comparatively lesser life cycle, they get easily damaged. जिनकी लाइफ साइकिल नहीं है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूस, मिल्क, ब्रेड, बटर, कितनी लाइफ होती है इनकी? हम एक ब्रेड खरीदते हैं, कितना दिन उसको यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम अप टू 3 डेज। उसके बाद उसकी उसमें फंगस आने लगता है, क्वालिटी खराब हो जाती है। फिर दैट इज नो ऑफ यू आवर्स पर्पस। मिल्क कितने दिन रख सकते हैं हम फ्रिज में प्रोक्योर करके उसको? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आप 1 केजी सेब लाएं, आप उसको 1 हफ्ता रख दें, उसके बाद आप देखें, आप सेब को खोलेंगे, एक भी सेब आपके खाने लायक नहीं बचेगा। दिस इज व्हाट देयर पेरिसेबिलिटी, वो जल्दी खराब हो रहे हैं। और ऐसे प्रोडक्ट जो लंबा चलते हैं कंपैरेटिवली नॉन पेरिसेबल कहलाते हैं। बहुत सिंपल है, जो प्रोडक्ट आसानी से खराब हो जाते हैं वो पेरिसेबल, जो थोड़ा चलते हैं ज्यादा नॉन पेरिसेबल। दूध से बनी मिठाई पेरिसेबल होगा या नॉन पेरिसेबल होगा? पेरिशेबल होगा सर। एग्जैक्टली, पेरिशेबल। फाइन। लकड़ी का फर्नीचर ड्यूरेबल होगा या नॉन ड्यूरेबल? नहीं, ड्यूरेबल होगा या नॉन ड्यूरेबल? ड्यूरेबल। सर ड्यूरेबल होगा। ड्यूरेबल। वेरी गुड। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्लास? कोई दिक्कत नहीं है? अटेंडेंस आप लोगों ने मार्क कर दिया, किसी का छूटा तो नहीं? Those who have not marked attendance, please mark, because your presence will be taken from there only. आप लोगों के मन में और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ऑनलाइन क्लास में हम लोगों को बहुत इंटरैक्टिव आगे बढ़ना है, इंटरेस्ट डेवलप होना है, सो दैट कि आपको ये फील नहीं हो कि हम क्लासरूम से बाहर हैं तो हम नहीं समझ पा रहे। नो, आई डोंट वांट दैट। आप बिल्कुल इंटरैक्ट करिए टीचर के साथ। हर दिन 5 मिनट 10 मिनट समय हम लोग रिजर्व रखेंगे, जहां पे आप अपने से क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें 2-4 मिनट 2-4 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के हम लोग वो भी डिस्कस करते हैं। यस, इफ एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। मेरा क्वेश्चन है ये कि जो फीस हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा हाँ क्लियर बोलिए। P4 means प्राइस प्लेस। थोड़ा सा तो तेज। सर ये डेली लाइफ में कैसे हमारे लिए बेनिफिट है और कैसे यूजेस इसका होगा? क्या चीज? किस चीज के बारे में? किस चीज के बारे में? प्रोडक्ट? यस सर, P4 means प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस। ये चारों का यूज सर हम अपने डेली लाइफ में कैसे करेंगे? बिल्कुल। अभी हम जब आप आगे जब कोर्स कंटेंट, अभी तो हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। जब आप जब कोर्स कंटेंट में एंटर करेंगे तब आप देखेंगे कि नाउअडेज वी हैव एक्सटेंडेड, ओनली 4 पीस इज नॉट देयर, वी हैव एक्सटेंडेड मोर पीस टू प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस के अलावा भी हमने एक्सटेंशन किया है पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंसेस टू। अब हमारे ऊपर इसका एप्लीकेशंस क्या है? एज ए कस्टमर हमको यह समझना है कि विच प्रोडक्ट इज वैल्यूएबल फॉर अस। एज ए कस्टमर हमको यह समझना है द प्राइस ऑफ विच प्रोडक्ट इज मोर कॉम्पिटिटिव फॉर अस। जैसे जैसे मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस कम होते जा रहा है। एज ए कस्टमर हमको यह समझना है कि हमारे लिए कौन सा मेथड डिस्ट्रीब्यूशन का आसान होगा जिससे हम प्लेसिंग कर सकें। प्लेसिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। आज आप देखिए ना, इस कोरोना काल में nobody want to go outside to purchase any product. Everybody used to purchase the product through mobile phones, through multiple apps. This is what the method of retailing, the method of distribution channel has been shifted toward purchasing at traditional wholesale and retailers. Instead, we are purchasing from our app-based company, those who are providing retailing type of
businesses. So this is shifting of paradigm, यहाँ से शिफ्टिंग हो रही है एंड लोगों को बेनिफिट हो रहा है. तो हमको भी पता होगा प्रमोशन, द मीडिया, सोर्स ऑफ मीडिया विच इज रिलायबल, विच इज नॉट रिलायबल. एडवर्टीजमेंट में सारे इंफॉर्मेशन सही नहीं होते, कुछ इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन उसमें गलत भी होते हैं. द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे हम ट्रस्ट करते हैं. अगर आपको बता दिया जाए भाई कल से क्लासेस आपका बंद हो गया, कोई फ्रेंड आपको चैट बॉक्स में र्यूमर कर दे, डू वी थिंक इट इज राइट सोर्स? नो, मजाक भी हो सकता है, अप्रैल फूल भी हो सकता है. बट अगर आपको एक ऑफिशियल मेल आ जाए कि कल क्लासेस नहीं होगी, तो दैट इज द ट्रस्टवर्दी सोर्स. तो दैट शुड बी देयर. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि किस सोर्स को हमको रिलाई करना है और किस सोर्स को हमको रिलाई नहीं करना है. तो रोल ऑफ मीडिया is becoming very vital nowadays. Media has need to be understood, and the promotional part is related with the media. Apart from it, our sales team effort, our presentation, these all skills are combining the efforts to make our product, price, place, promotion, that is 4 P's, or multiple variables of marketing mix to be competent. मार्केटर के लिए भी, कस्टमर के लिए भी. कस्टमर अगर इस बात को समझने लगे तो मार्केटर की आधी प्रॉब्लम दूर हो जाती है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो कस्टमर को अवेयर करने की होती है. अगर कस्टमर अवेयर्ड है पहले से तो मार्केटर के लिए बहुत आसान है, सिर्फ उनको कन्विंस करना है. नहीं, व्हाट योर आंसर? हेलो, hello, am I audible? Yes, sir. Got your answer? Yes, sir. Yes, sir. और कोई क्वेश्चन किसी के मन में? So my second question is कि सर जब हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो बिल्कुल. उसमें मेन फोकस क्या होना चाहिए हमारे लिए? Customer, because we are what we are studying. We need to cater an organization. हमें एक organization के point of view से सोचना है. Because we are going to be a future manager. So we need to analyze the market situation. We need to access a scan marketing environment in which 4 P's plays a very essential role. हमारा मेन पर्पस क्या है? कंपनी को बेनिफिट. हमें कोई भी देखो, बहुत सिंपल सा एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन नोट करके रखना. Whatever we are giving to a corporate, हमें उसका 10% वापस मिलेगा as our salary, as our fringe benefits, as our perks. ठीक है? तो कंपनी को अगर हम 10 लाख का बेनिफिट कराएंगे तो हमारे पास 1 लाख रुपीस आएगा. तो डेफिनेटली 10% का ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ही कारगर है और इसी फॉर्मूले पे बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस भी काम करते हैं. और कस्टमर्स भी हैप्पी, एम्प्लॉयर भी हैप्पी, एम्प्लॉइज भी हैप्पी. द पॉइंट इज, योर क्वेश्चन इज दैट कि हमें इससे क्या बेनिफिट होना है. एज ए, हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट every functional department used to increase expenditure, and marketing is only the functional department who generate revenue for the organization. And being as a revenue generator, we have to understand our role. We have to understand कि हम पूरी ethical practices के साथ revenue generate करेंगे. हम किसी कस्टमर को चीट नहीं करेंगे, हम कस्टमर को genuine information देंगे, हम सही information, सही प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी, satisfied कस्टमर तभी रिटेन होंगे हमारे पास. एक कस्टमर को अगर हम सेटिस्फाइड करेंगे ना तो 10 साल 20 साल 25 साल के लिए रिटेंड हो गए हमारे साथ. बेबी वो उस कंपनी के लिए रिटेंड नहीं हो, लेकिन वो पर्टिकुलरली एज अ सेल्स पर्सन, पर्टिकुलरली एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, पर्टिकुलरली एज अ ऑर्गेनाइजेशनल रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे लाइफ टाइम क्लाइंट बन जाएंगे. और हम जिस कंपनी को भी रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारा, उनका सपोर्ट हमको मिलता रहेगा. दिस इज व्हाट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. दिस इज वन ऑफ द इंडियन एसेंशियल फीचर. Every Salesforce team, every marketing team need to be developed. और एक important चीज, मार्केटिंग का मतलब आप लोग कतई डोर टू डोर सेलिंग से मत निकालिएगा. मार्केटिंग इज मच ग्रेटर देन इट. सिर्फ डोर टू डोर सेलिंग मार्केटिंग नहीं है. मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग, उसमें हम डोर टू डोर सेलिंग भी करते हैं. सिर्फ डोर टू डोर सेलिंग डायरेक्ट मार्केटिंग में भी नहीं करते हैं. उस डायरेक्ट मार्केटिंग के भी हमारे पास आज कई सारे मेथड्स हैं. वेबसाइट्स के थ्रू कराते हैं, रिटेल आउटलेट्स के थ्रू कराते हैं, कस्टमर को ईमेल करना,
कस्टमर को प्रमोशनल ऑफर्स देना, देर आर मच मेनी थिंग्स. सो एक पहले के जमाने में लोगों के माइंड में एक मिथ हुआ करती थी, अरे यार मार्केटिंग प्रोफेशन तो बहुत हार्ड है ना, कि हमसे तो नहीं होगा, दिन भर झोला टांग के धूप में दौड़ते रहो. नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ये मिथ है, इस मिथ से बाहर आई है. पूरी की पूरी कंपनी आज मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, और सबसे ज्यादा अर्निंग अगर किसी सेगमेंट में है तो सिर्फ मार्केटिंग सेगमेंट में है. सबसे कम समय में सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी सेगमेंट में है तो मार्केटिंग सेगमेंट में है. एक्सपीरियंस कम होते हुए भी हमारे अंडर में अगर बहुत सीनियर लोग अगर काम कर सकते हैं वो मार्केटिंग सेगमेंट में है, बिकॉज ये इनोवेटिव है. नए आइडियाज आपके पास है, आप मार्केटिंग रिसर्च में कुछ नया इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो. आपके पास वैरायटी है, अपॉर्चुनिटीज है अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करने के लिए, कंपनी को बेनिफिट कराने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाइड कराने के लिए, और अपनी डिजायर्ड नीड को भी फुलफिल करते हुए नए नए नीड, वी कैन से कन्वर्जन ऑफ वांट इनटू नीड्स. हमारी लाइफ स्टाइल बढ़ेगी तो ऑफकोर्स आज जो हमारा वांट है कल वो हमारा नीड होगा, राइट? व्हाट योर आंसर? Any more question? Or should we end today's session? सर, ऑगमेंटेशन ऑफ बिजनेस क्या होता है सर? उसको तोड़ना टुकड़ों में, छोटे छोटे. देखो किसी भी बड़े काम को ना, पहले हम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा कोई काम होता है तो हम घबरा जाते हैं कैसे करेंगे, लेकिन जैसे ही हम उसको डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेकअप कर देते हैं आसानी से उस काम को हम कर पाते हैं. जैसे किस कोर्स में आपका एडमिशन है पिंटू? बीबीए सर. बीबीए. ग्रेजुएशन. अब इस लॉकडाउन में हम ग्रेजुएशन कैसे करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है ये. हमने उसको तोड़ दिया. लॉकडाउन क्या अगले पूरे 3 साल के लिए है? वेरी सुन, जैसा कि अनलॉक 4 अभी रिलीज हुआ है कल परसों, मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर से हम लोग नॉर्मल क्लासेस की तरफ रिज्यूम कर जाएंगे. इट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, बिकॉज सितंबर तक उन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि अभी क्लासेस नहीं चलेंगे. सितंबर के बाद हम लोग इस पर फिर से मीटिंग करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं. ये जो प्रेशर हमारे माइंड के ऊपर था कि हमारा करियर का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, पढ़ाई नहीं होगा, सेशन बैक हो जाएगा, जॉब का क्या होगा, ये सब धीरे धीरे रिप्लेस हो रहे हैं. ऐसे हमने उनको ऑगमेंटेड पार्ट में तोड़ दिया. 3 साल का कोर्स मतलब 6 सेमेस्टर. जो मेजर जिसको हम कह सकते हैं टेक्निकल डिफिकल्टीज सबसे ज्यादा कहाँ है? फर्स्ट सेमेस्टर में. अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर को हम अभी से ही स्टार्ट कर दें, अभी हम रुक जाएं कि नहीं हम लोग क्लासेस नहीं स्टार्ट करेंगे, अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है हमें रोक रही है, इट विल हैव प्रेशर both on us, on you too, on your career too. We are what trying to deal with. No, we are continue. Challenges आती है, आने दो. पैंडेमिक आती है, आने दो. मुश्किलें आती है, आने दो. हम हिम्मत नहीं हारेंगे. हम अपने मोटिवेशन को, अपने जुनून को कंटिन्यू रखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे. हम बढ़ रहे हैं ना, हर दिन आप कुछ न कुछ सीखेंगे एंड डेफिनेटली अगले 2-3 महीने में सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल होने के बाद जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसका एक रिकैप भी क्लासरूम में करेंगे ताकि किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ऑगमेंटेशन इज व्हाट, उस बड़े प्रॉब्लम को तोड़ के आज हम टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं ना, हम छोटे छोटे लेवल पे हम इस काम को कर रहे हैं, सो दैट वी विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज इन कमिंग फ्यूचर. दैट इज व्हाट द क्राइसिस मैनेजमेंट, दैट इज व्हाट द कन्वर्टिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम पैंडेमिक, एंड दिस नीड टू बी कंडक्ट बी ऑल. थैंक यू सर. गॉट इट? यस सर, थैंक यू. एनी मोर क्वेश्चन or should we close today's session? Okay, thank you gentlemen, thank you very much all of you. I hope you must have learned something and keep learning always. Still we are learning every day from students, from friends, from academicians. So learning is a habit and make it as a permanent habit. Thank you very much.